साथियों, अब ज़्यादा विलंब नहीं करते हुए आज की ऐतिहासिक सीडब्ल्यूसी के विषय में हमारे महासचिव संगठन श्री केसी वेणुगोपाल जी आपको संबोधित करेंगे। तत्पश्चात श्री जयराम रमेश जी भी आपको संबोधित करेंगे, फिर आपके सवाल लेंगे। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम all of you, national and regional media people, on this historic AICC meeting. Today we had a excellent extended working committee meeting in connection with the AICC meeting at the venue of the historic Sardar Vallabhbhai Patel Museum. We ऑफ कर दिया। Hello. ऑफ कर दिया बस। नाउ यू विल बी ओके। Today we had an extended working committee meeting in connection with the AICC meeting at this historic venue of Sardar Vallabhbhai Patel Memorial. This meeting actually a significant moment in the party's journey, taking place shortly after the centenary celebration of Mahatma Gandhi's presidency of the Congress and during the 150th birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel, two towering leaders of Indian National Congress and Indian Freedom Movement. The meeting was presided by Honorable Congress President Mallikarjuna Kharge ji and attended by Honorable CPP Chairperson Madam Sonia Gandhi and Honorable Leader of Opposition Rahul Gandhi and all our Chief Ministers and CWC members, permanent and special invitees, Pradesh Congress Committee Presidents, CLP leaders, CEC members and Parliamentary Party office bearers. The meeting recalled the deep historical association between Indian National Congress and the state of Gujarat. The INC first met in Gujarat in 1902, and this is the sixth time the party is holding a national level meeting in the state and third time in Ahmedabad itself. This is also the place the seeds of freedom movement was nurtured through. Ahmedabad mill strike, Kheda Satyagraha, Bardoli Satyagraha and Dandi March. The extended working committee approved the resolution, a special resolution on Sardar Vallabhbhai Patel, which is going to be released now. Then CWC also discussed and adopted the tomorrow's agenda. The deliberations and decisions today, extended CWC will feed into the AICC meeting scheduled for tomorrow, April 9, 2025, at the Bank of Sabarmati Event Center. In this extended CWC meetings, two resolutions, major resolutions and a resolution along with the Gujarat state specific, had been discussed. So many members, around 35 members, including senior most leaders, participated in that discussion. They have given some inputs incorporating in the resolutions. The drafting committee will sit in the evening and they will finalize the final resolution before the AICC tomorrow.
The session tomorrow, I would like to read out the agenda program of the tomorrows. Tomorrow morning 9:30, all the AICC members will assemble at the venue for flag hosting. 9:30, Honorable Congress President will hoist the flag along with the extended CWC members. After that, procession of Honorable Congress President to the dais along with the CWC, PCC presidents and CLP leaders. After that, briefing of agenda of the meeting. Then welcome by the reception committee of the AICC, that is PCC President of Gujarat will welcome the gathering. Then confirmation of meeting will be there and the condolence resolutions will be moved. After that, presidential address of Honorable Congress President will be there around 10 o'clock in the morning. Then we will move resolutions for discussion. After the in between, Madam CPP Chairperson and former Congress President Rahul Gandhi will also intervene in this meeting. Basically, we are decided to have a concluding ceremony around 5:30. After that, session will be over. This is the agenda of the meeting tomorrow. I think the theme of the session, you already know about the theme of the session. Nyay Path, Sangharsh, Samarpan, Sangharsh. Path of justice, resolve, dedication and struggle. This is the theme of this session. In Belgavi session, we already had been passed the resolution on organizational restructuring of the Congress Party in 2025. We dedicated this year for the complete revamp of the organizational structure. Today also we had discussed about that issue. We are going to have a massive organizational reshuffle. We are going to forming guidelines for the reorganizations. Our in charges and general secretaries are on the job of doing all these things. Thank you. This evening, Pratna Sabha, you can say. This evening program. Just a minute. It's not One more minute. Today evening 6:15, you know that there is a prayer meeting in Sabarmati Ashrama. Therefore, all extended CWC members will be going to participate in that prayer meeting, followed by a cultural event. जयराम जी, मैं आप जयराम रमेश जी से आग्रह करूंगा कि वो अब आपको हिंदी में। नमस्कार साथियों, आज 158 सदस्य मौजूद थे, एक्सटेंडेड कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य, जिनमें सारे पीसीसी अध्यक्ष, सारे सीएलपी लीडर, हमारे मुख्यमंत्री और सारे सीडब्ल्यूसी के परमानेंट, स्पेशल और इनवाइटेड, कुल मिलाकर 158 सदस्य मौजूद थे। न्याय पथ अधिवेशन में आज एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी का है और कल एआईसीसी का होगा। जैसा कि अभी वेणुगोपाल जी ने आपको जानकारी दी है, आज एक विशेष प्रस्ताव सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर उस पर चर्चा हुई और वो पारित हुआ और उसकी कॉपी अभी आपको 1-2 मिनट में मिल जाएगा। इसके अलावा कल जो 2 प्रस्ताव पर चर्चा होने वाले हैं, एक राष्ट्रीय मुद्दों पर और दूसरा गुजरात को लेकर जो राजनीतिक स्थिति है उस विषय पर एक प्रस्ताव, दोनों प्रस्तावों पर यहाँ चर्चा हुई, वो पारित भी हुआ और कल उस पर विस्तार से एआईसीसी में बहस होगी और उसके बाद वो भी पारित होगा। इसके अलावा आज जो अभी वेणुगोपाल जी ने कहा, हमारे 140 साल के इतिहास में छठी बार हम गुजरात में मिल रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक छठी बार गुजरात में हो रहा है और तीसरी बार हम अहमदाबाद में मिल रहे हैं। आज की बैठक का विशेष महत्व ये है कि जब हम 150वीं जन्म जयंती मना रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, हमारा यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक में
एक्सटेंडेड CWC मीटिंग का बैठक करवाना मैं समझता हूँ एक हमारा फर्ज बनता था और हमारा कर्तव्य था और एक देश के राजनीति के लिए भी हम संदेशा दे रहे थे। इस किताब को लेकर, भारत के संविधान को लेकर, जो हमारे संविधान के प्रस्तावना में पहली ही लाइन पर जो लिखा गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष जी, राहुल गांधी जी और सभी सदस्यों ने बात की और कल के प्रस्ताव में यह प्रतिबिंबित होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी की क्या एजेंडा है सामाजिक न्याय को लेकर, राजनीतिक न्याय को लेकर और आर्थिक न्याय को लेकर। इस पर विस्तार से हमारे प्रस्ताव पे चर्चा होगी और कल इस पर AICC बैठक में भी लोग इस पर अपनी राय देंगे। तो आज मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, पर यही कहूंगा कि एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी और AICC का बैठक गुजरात में होना ही एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली संदेश है। लोग मुझे पूछते रहते हैं आप इसकी क्या विशेषता है? विशेषता मुद्दों पर भी है, पर विशेषता और भी है कि हम गुजरात में कर रहे हैं और 150वीं जयंती के वर्ष में हम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक में कर रहे हैं। आपको बिल्कुल साफ हो जाएगा हमारे प्रस्ताव से कि सरदार पटेल जी और जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में क्या रिश्ता था, क्या अनोखी जुगलबंदी थी। ये आधुनिक भारत के दो निर्माता थे जिन्होंने महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और आधुनिक भारत की नींव भी रखी। और जो लोग ये कहते हैं कि सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में कोई रिश्ता नहीं था, बिगड़ गया था, ये बिल्कुल असत्य बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मिथ्या फैला रहे हैं, ये बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और हकीकत ये है कि संविधान के बनाने में, आधुनिक भारत के नींव रखने में और स्वतंत्रता संग्राम में भी गांधी जी के नेतृत्व में पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक अनोखा रिश्ता था और ये जुगलबंदी हमारे देश के लिए बहुत फायदेमंद निकला। आखिर में मैं यही कहूंगा कि प्रस्ताव में भी इसका जिक्र है कि जो लोग अपने आप को सरदार पटेल का नाम लेते हैं बार बार, सरदार पटेल तो हमारे किसान, उनकी शुरुआत तो किसान आंदोलन से शुरू हुआ था। आज जिस तरीके से किसानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, किसान संगठनों को बदनाम किया जा रहा है और जो किसान की मांगे हैं MSP को लेकर, कर्ज माफी को लेकर और जो अनेक मुद्दे किसान संगठन उठा रहे हैं, जिसका नजरअंदाज किया जा रहा है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का घोर अपमान है। शुक्रिया। अब आपके सारे सवालों के जवाब कल की विस्तृत प्रेस वार्ता के बाद। वेणुगोपाल जी, एक सवाल ये, प्रियंका गांधी is a very senior leader of the Congress party. Why was she not present today during the meeting? No questions today. Any specific reason? Tomorrow we'll address. Venugopal ji, इधर I am asking about Priyanka Gandhi ji. She is a very senior leader of the party. Why was she not present today? Any particular reason, please? No, she already had been requested to the Honorable Congress President for a leave in this AIC session and also for the Parliament session. Why? Because she had a pre-engagement in abroad. That is why she requested for a leave from the party. Party already granted that leave. एक मिनट आज 35 सदस्य नहीं मौजूद थे, तो एक को निशाना बनाना सही नहीं है। 35 सदस्य बीजेपी जिस जगह आप बैठे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल जो है मेमोरियल है, गांधीवादी संस्थाओं पर एक आक्रमण हो रहा है।
या साबरमती ट्रस्ट देखिए, ये बिल्कुल या वाराणसी में गांधीवादी संस्थाएं हैं। देश के अनेक अनेक जो गांधीवादी उन पर महात्मा गांधी का नाम लेते हैं पर गांधी का बदनाम करते हैं। एक ऐसे सांसद हैं, बीजेपी के सांसद हैं, जिनको पूछा जाता है कि क्या आपकी राय है गांधी या गोडसे, और वो सांसद का जवाब, इनकी मानसिकता है। बार बार गांधी का नाम लेते हैं, पटेल का नाम लेते हैं, पर असली बात ये बार बार महात्मा गांधी और सरदार पटेल की विरासत को बिल्कुल एक सिस्टमैटिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से उस पर हमला कर रहे हैं। Sir, the Congress has been talking about empowering DCC presidents. Was there a specific discussion on that and a decision made on what exactly, how they'll be empowered and what specific powers will they be given? we already had been decided and on that issue, because empowering of the DCC president and duties and powers of the DCC had been discussed in various forums. Already general secretaries in charge's meeting had been approved that proposal. We are going to roll out that proposal in near future. अब आपको बाकी सारे सवालों के जवाब कल देते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। प्रेयर मीटिंग में आप सबका प्रेयर प्रार्थना सभा होने वाली है साबरमती आश्रम पे। पूर्व मिनिस्टर भी महाराष्ट्र, आप इधर आओ, इधर आओ। अरे आओ ना, जब मैं कह रहा हूँ। एवरीथिंग क्लियर। हमारे बीच महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री, हमारी वरिष्ठ नेता, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य सम्मानीय यशोमती जी उपस्थित है। वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो कार्यरत बैठक है, इससे उठ के आपके साथ बात करने के लिए आए हैं। मैं विनती करता हूं यशोमती जी को कि वो पत्रकारों से बातचीत करें। सम्मानीय यशोमती जी। नमस्ते। आज गुजरात में महात्मा गांधी के भूमि पे, सरदार पटेल साहब की भूमि में आज आना हुआ है। सरदार पटेल साहब और महात्मा गांधी जी दोनों ही कांग्रेस विचारधारा को बड़े पैमाने पे संभालने वाले और हम सबको ताकत देने वाले नेता थे। उनकी प्रेरणा से कांग्रेस अब भी चल रही है और आगे भी चलेगी। 25 साल तक सरदार पटेल साहब ने कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभाला था और हम सभी में सर्वधर्म समभाव की भावना उन्होंने बहुत अच्छे से हमें प्रेरित किया है और करते रहेंगे। आज गुजरात की भूमि पे हम लोग जब यहाँ आते हैं तब हमें वो ऊर्जा महसूस होती है और उसी ऊर्जा को हमें टिकाए रखना है। आज कांग्रेस CWC के मीटिंग में बड़े पैमाने पे बातें हुई। आदरणीय खड़गे साहब जी, आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय राहुल जी और सभी नेतागणों ने इसी प्रेरणा में चलने का विश्वास हम सब में और पूरे देश में निर्माण किया हुआ है। आज हमें बड़ी खुशी है कि हम आपके बीच में हैं और यहाँ से बहुत सारी ऊर्जा लेकर जा रहे हैं इस देश को बचाने का, सर्वधर्म समभाव को बचाने का और संविधान को और संविधान की भावनाओं को और बरकरार रखने का यहाँ से निश्चय करके हम लोग यहाँ से निकलेंगे। धन्यवाद। सबको मिलेगा, शांति रखो। मैडम भैया एक मिनट स्टैंड। हमारे बीच गौरव गोगाई जी जो हमारे वरिष्ठ नेता है, लोकसभा में उपनेता है और साथ साथ में
पूरे देश की जो समस्या है इसको संसद में जिस तरह के उठाते हैं, हमारे बीच है वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बीच में आपसे बात करने आए। मैं विनती करता हूँ गोगाई जी को वो पत्रकारों को संबोधित करें। धन्यवाद दोस्तों। हमारे लिए ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि हम दो महान हस्तियों को याद कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी, जिनको कांग्रेस दल के अध्यक्षता की जिम्मेवारी लेते हुए 100 वर्ष संपूर्ण हुए, और साथ ही साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम याद करते हैं, क्योंकि इस वर्ष उनकी 150वीं जन्म जयंती की ये ऐतिहासिक ये वर्ष है। और इन दोनों महान हस्तियों को याद करते हुए, उन दोनों में हमारे भारत माता के प्रति जो देशभक्ति थी, उस देशभक्ति को आज हम याद कर रहे हैं। और ये एक हमारा राष्ट्रवाद है जिसकी नींव हमारे स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी, सरदार पटेल जी और उनके जैसे विभिन्न कांग्रेस दल के नेतागण और उनके साथ साथ पूरे भारत की आवाम, पूरी भारत की जनता ने दर्शाया, और अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए एक ऐसा एक शक्तिशाली माहौल बनाया। और हमारी देशभक्ति में, हमारी राष्ट्रवाद में हमारी एकता है, हमारी सद्भावना है, और हमारे संस्कृति के प्रति दायबद्धता है, कर्तव्य है, जिम्मेवारी है। और संविधान की संरक्षण आज हमारे लिए सबसे वो मूल कर्तव्य है आज के इस वर्तमान माहौल में। और इसीलिए गुजरात के इस पावन भूमि पर आकर हम गुजरात के लोगों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। ये गुजरात देशभक्ति की भूमि है, पवित्र सोमनाथ मंदिर की ये भूमि है। इस गुजरात के लोगों में उद्योग के प्रति जो उनकी जो शक्ति है, उनकी जो ज्ञान है, उसके प्रति हम नमन करते हुए बहुत से अहम मुद्दों पर हम वर्तमान में चर्चा कर रहे हैं। और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने जो हमारे भारत के एक्सपोर्ट पर जो टैरिफ्स लगाए हैं, वो पूरे देश के साथ साथ गुजरात के भी बहुत से महत्वपूर्ण उद्योग पर एक नकारात्मक प्रभाव फैलाएगा। और उसको लेकर हम तो अपना चिंता व्यक्त कर रहे हैं, उसको लेकर हम चाहते हैं कि भारत सरकार हमारे राष्ट्र के उद्योग के लिए और मजबूती से अमेरिका के सरकार के साथ संवाद करे, लेकिन चुप्पी के बजाय हमें कुछ नहीं दिखता। ये टैरिफ्स हमारे छोटे छोटे लघु और मध्यम वर्ग पर एक बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डालने वाला है। और मुझे अफसोस है कि गुजरात से आए हुए हमारे प्रधानमंत्री, उनको जिस प्रकार से नेतृत्व लेना चाहिए था इस विषय पर, वो किस कारण मजबूर है, वो किस कारण मौन है, हमें नहीं पता। और बजाय हमारे छोटे उद्योग, किसान को बचाने के
बजाय उसके विपरीत ये सरकार पिछले शाम को, पिछले रात को हमारे गरीब और मध्यम वर्ग पर गैस सिलेंडर का दाम 50 रुपए बढ़ाकर उन्होंने और हमारा जीना और मुश्किल कर दिया। पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में जो गिरावट हुई है, ये सरकार साफ साफ मना करती है कि कोई राहत आम ग्राहक के पास जाए। तो ये किस प्रकार का अर्थव्यवस्था, किस प्रकार की अर्थनीति, जहां पर वर्तमान में एक के बाद एक चुनौतियां और बढ़ रही है। हमारे किसान, हमारे कोऑपरेटिव, हमारे छोटे मध्यम वर्ग पर, हमारे केमिकल्स, हमारे टेक्सटाइल्स, हमारे लेदर, हमारे ऑटोमोबाइल क्षेत्र पर। तो इन विभिन्न बातों पर कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत गंभीर राय ली हुई है। आज भी कुछ दिन पहले बांग्लादेश के सरकार के इंटरिम केयरटेकर मोहम्मद यूनुस साहब के साथ मिलने के बाद भी आज भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की जो उनको एक सुरक्षा मिलनी चाहिए, वो ना मिलने के कारण हम बहुत चिंतित हैं। और जो सरकार जो अपने आप को विश्वगुरु और जो सरकार कहती है कि प्रधानमंत्री के कारण विश्व में हमारी ताकत बढ़ चुकी है, हम ना बांग्लादेश के मामले में कुछ सकारात्मक काम कर पाए हैं, ना अमेरिकन टैरिफ्स को लेकर कोई सकारात्मक काम कर पाए हैं, ना हमारा पड़ोसी देश चीन के साथ कोई हम सकारात्मक काम कर पाए। तो बहुत से अहम मुद्दों पर हमारी बात हो रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस ऐतिहासिक कांग्रेस वर्किंग कमेटी से, अहमदाबाद से आने वाले समय के लिए एक नया दृष्टिकोण, एक नई आर्थिक परिकल्पना, एक नई सामाजिक सोच, एक नई सांस्कृतिक ढांचा और लोगों में एक नई उम्मीद और जोश उजागर करे। धन्यवाद। गौरव जी, एक सवाल है जी। कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी गुजरात आए थे, उन्होंने कहा था कि कुछ नेता कांग्रेस के बीजेपी से मिले हुए हैं और उन्होंने शादी वाले घोड़े और रेस वाले घोड़े का भी जिक्र किया था। तो क्या उस पर भी चर्चा हो रही है, कोई कड़ा कदम जो है वो पार्टी? देखिए, जब राहुल गांधी जी ने एक विचार रखी तो स्वाभाविक है कि उस विचार को हमें पालन करना है, गंभीर रूप से हमें उस पर काम करना है और भविष्य में हम उनके इस विचार के प्रति, हमारी जिम्मेवारी है कि उन्होंने हमारे समक्ष में यह बात रखी तो उनके बातों पर हम कितना आगे बढ़ पाएं, ये हमारी जवाबदेही जिम्मेवारी बनती है आने वाले समय। रिगार्डिंग कोएलिशन, गठबंधन को लेकर के क्या बातचीत हो रही है, किन शर्तों पर रहेगा, क्या वो सहयोगी वर्तमान में भी सहयोगी रहेंगे या अपनी पार्टी को फैलाने के क्रम में जो थोड़ी नाराजगी हो रही है उस पर भी आपकी ध्यान? देखिए, विभिन्न राज्यों में उनकी राजनीतिक परिस्थितियां अलग है, विभिन्न राज्यों में अलग अलग समय पर निर्वाचन होंगे और उन राज्य के नेताओं के साथ विचार विमर्श होगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमने निर्वाचन को लेकर, भारत के राजनीतिक व्यवस्था को लेकर हमने बहुत गंभीर बातें रखी हैं। अर्थव्यवस्था और जो वहाँ की जो शिक्षा और स्वास्थ्य की जो प्रणाली है विभिन्न राज्यों में, उसको लेकर हमने अपनी चिंता व्यक्त की है। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा और चुनावी अगर मैं बातें आपको मैं आपके पक्ष में रखूं, आपके समक्ष रखूं, तो वो मेरे लिए अनुचित हो। देखिए, जो हमारे आने वाली
समय में जो प्रणाली है उसको लेकर हम अभी विभिन्न नेताओं की राय हम ले रहे हैं। सब नेताओं की राय हम ले रहे हैं, अनुभवी नेताओं के राय ले रहे हैं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस क्या चाहते हैं उनके राय ले रहे हैं, जो हमारे भूतपूर्व हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके राय हम ले रहे हैं। तो सभी के राय लेते हुए निश्चय ही जब हमारे कांग्रेस अध्यक्ष अपनी बात रखेंगे और उन बातों को हम कल हमारा जो सेशन है उस पे हम रखेंगे तो आपको पूरा का पूरा आपको वहाँ पे स्पष्ट हो जाएगा। गौरव सर, गोगोई सर, आपका एक मिनट गोपाल मेरा सवाल आपसे ये है, हर बार सीडब्ल्यूसी जब होती है उसके बाद रेजोल्यूशन आते हैं, तो आज कोई रेजोल्यूशन, जैसे आपने फॉरेन अफेयर्स फॉरेन पॉलिसी की बात करी, इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करी, तो क्या इन दोनों को लेकर कोई रेजोल्यूशन आएगा क्या? थोड़ा सब्र रखिए, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। मेरे बाद के आने वाले जो आपके प्रेस वार्तालाप है उसके लिए भी थोड़ा समय रखिए। हम विभिन्न मुद्दों पर बात हम कर रहे हैं, थोड़ा आप सब्र रखिए। कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशनल रिवैम्प की बात की जा रही है एंड दैट रिवैम्प इज टू बिगिन फ्रॉम गुजरात में ऑलरेडी स्टेटेड ऑब्जेक्टिव आपका टू विन द 2027 इलेक्शन, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल रिवैम्प की बात है आज हुई निश्चय। और आपने देखा होगा कि आज से कुछ दिन पहले हर प्रदेश के जिला अध्यक्षों के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी ने वार्तालाप की। मुझे लगता है कि एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम हाल ही में हमने दिल्ली में संपूर्ण किया कि पूरे भारत देश में जितने भी जिला हैं उन सभी जिला अध्यक्षों को विभिन्न समय पर दिल्ली बुलाकर उनकी जो बात थी उन्होंने आदरणीय राहुल गांधी जी के समय के समक्ष रखी और उन्होंने भी अपनी जो बात रखनी थी, विचार परामर्श था, उन्होंने भी सबको दिया। गुजरात में आपका अधिवेशन हो रहा है, गुजरात में सीडब्ल्यूसी हुई, गुजरात में तकरीबन 30 साल से कांग्रेस सरकार नहीं है। राहुल गांधी ने खुद चैलेंज किया है संसद में कि इस बार भाजपा को गुजरात में हराएंगे। इस मुद्दे को लेकर क्या इस बैठक में चर्चा हुई है? कल की चर्चा होने वाली है, किस मॉडल को लेकर आप जब उन्होंने हमारे सामने एक लक्ष्य रख दिया है कि 27 में हमें गुजरात में चुनाव जीतना है और जो अन्याय, नाइंसाफी और एक छोटे वर्ग तक जो प्रगति सीमित हो चुकी है उस नाइंसाफी को तोड़ना है, तो हर अवसर पे हम गुजरात को लेकर बहुत गंभीर है और हर अवसर पर हम अपने बीच में ऐसी हमारा वार्तालाप होता है जो आने वाले समय में गुजरात में हमारी रणनीति को सहयोग करे। लास्ट क्वेश्चन दैट गोपाल BBC, गोपाल फ्रॉम BBC एंड देन BBC। में से जो कांग्रेस के नेता हुए, आपने गांधी की बात की, तो क्या पार्टी अब चिंतित है उस बात से लेकर कि गुजरात में पहले पिछले 3-4 दशक से कोई ऐसा मास लीडर नहीं आया जो आपकी पार्टी को पावर पे ले जाए, जो आपकी पार्टी को लोगों के बीच में ले जाए? देखिए मैंने शुरुआत में ही गुजरात के लोगों का नमन किया, गुजरात की इस पावन भूमि के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की और हमारा पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में गुजरात के लोग, गुजरात की विवेक शक्ति और गुजरात के लोगों का आशीर्वाद और शुभकामनाएं हमें मिलेंगी। एक बड़ा लक्ष्य कुछ महीने पहले राहुल गांधी जी ने हम सब पर के समक्ष रखा है कि गुजरात को हमें जीतना है और उस गुजरात के चुनाव में गुजरात कांग्रेस अकेला नहीं, पूरा AICC यहाँ पर गुजरात पे आकर गुजरात के कांग्रेस को और ताकतवर बनाएगी और पूरा AICC उस गुजरात के चुनाव को लड़ेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन। હવે પાછા વ્યા જજો બધે।